नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum everyone. Let's begin. Please switch on your video cameras. All right. So yesterday we covered conditional sentences. We did type 0, type 1, type 2 and type 3. And I suppose I gave you homework. So let's first discuss that and also discuss yesterday's homework as well. And then we'll start with voice, active voice and passive voice. So let's begin. All right. So this was the exercise which I gave you as a homework. And I hope that you have done it. Also, conditional sentences, I hope कि अब clear हो गए आपको. So I would take somebody's name and I'll refer the point. So let's begin with you, Sana Aruj. Number 1, if the weather is nice tomorrow, we dash and the verb given is to you go to the zoo. Ma'am, if the weather is nice tomorrow, we shall go to the zoo. And यहाँ पर हम will भी लगा सकते हैं, मतलब we will go to the zoo. Very good. We shall go to the zoo or we will go to the zoo. Which type of conditional is this? Is this first? First, type 1 conditional. G. Hiba Ikram. Number 2, if the weather were nice today, we, again you have a dash and the verb given is go to the zoo. G. Hiba. If the weather were nice today, we would go to the zoo. We would go to the zoo. Can you explain it? मैम ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल है, इसमें वर यूज हुआ है और वर हम सेकंड टाइप में यूज करते हैं. Very good, very good. इसमें जो है वर यूज किया है और जिस हमेशा ये करते हैं टाइप 2 में कि पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है और जिसके मैंने आपको बताया था फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब का इस्तेमाल और रिजल्ट क्लॉज में would plus first form. So if the weather were nice today, we would go to the zoo. Okay, let's come to now the next topic that we'll be doing today, and that is voice, active and passive. So let's begin with voice, active voice and passive voice. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि exclusively इस पे question नहीं आता, but we are going to quickly go through it because हो सकता है कि again sentence correction में जो है इस पे कुछ ना कुछ आ जाए. So let's begin. Just like it's very easy. I'm sure you have done it before as well. Active voice क्या होता है? When subject is acting, and for the speaker, the subject is more important than action. किस पे focus ज़्यादा होता है active voice में? Subject पे. आपको याद होगा हमने पढ़ा था English sentence structure में, start में ही मैंने आपको बताया था कि sentence structure English का जो है वो क्या है? SVO, subject, verb, object. ठीक हो गया? So एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस होता है, स्पीकर पे या जो एक्ट कर रहा है उस पे फोकस होता है, एक्शन पे फोकस नहीं होता. ठीक है, यू हैव द एग्जांपल शाहजहां मेड ताजमहल. ठीक है, सो फोकस किस पे है? शाहजहां पे. शाहजहां इज द सब्जेक्ट, मेड इज द वर्ब, ताजमहल इज द ऑब्जेक्ट. पैसिव में क्या होता है? व्हेन द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, सब्जेक्ट से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? एक्शन. एक्शन पे फोकस है. फॉर एग्जाम्पल इसी को चेंज करते हैं, ताजमहल वॉज मेड बाय शाहजहां. सो इट इज द फोकस इज ऑन मेड, कि बनाया जो है, कंस्ट्रक्शन पे फोकस है, एक्शन पे फोकस होगा. सो दिस इज व्हाट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज. और बेसिकली इसमें होता ही है कि आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना आना चाहिए. सो इसमें आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन यू कन्वर्ट इट द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, the subject becomes the object, and the verb जो है वो हमेशा third form of the verb हो जाता है. So let's start with it. Now these are a couple of things that you need to keep in mind, and I would request you all to note it down with you, so that you have this with you in record. सबसे पहले to be. Now if you remember जब हम conditionals भी कर रहे थे, so I told tenses जब हमने start किए थे और auxiliary verbs हम कर रहे थे, तब भी I told you कि to be जो होता है वो बहुत सारे different words उसके अंडर आते हैं. और कौन से words उसके अंडर आते हैं, कौन से auxiliary verbs उसके अंडर आते हैं? am, is, are, was, were, been, being. ये सारे क्या हैं? to be. ठीक है, when I say या brackets में लिखा होता है to be, इसका मतलब है इनमें से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसमें फिट होगा सेंटेंस में. ठीक है, am, is, are, was, were, been, being, all of them they are to be. Followed by third form of the verb. Keep in mind कि
पैसिव में जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो किसी सेंटेंस को, सो वर्ब की क्या फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कीप इन माइंड कि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज होगी, बट आपने टेंस चेंज नहीं करना। ये साथ लिखिए आगे ब्रैकेट्स में, डू नॉट चेंज द टेंस, टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। रूल्स पे आ जाएं, व्हाट आर द रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव? वी वोंट गो इनटू टू मेनी रूल्स, बस बेसिक रूल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं। लुक एट द एग्जांपल, आई रोट अ लेटर। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, लुक एट द टेंस, ट्राई टू डिटरमिन द टेंस। आई रोट अ लेटर, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। अब स्टेप नंबर 2, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिटरमिन करें। आई इज द सब्जेक्ट, अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 3, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, अ लेटर बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, आई विल टर्न इनटू मी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक है, सो आई विल बिकम मी। अ लेटर, अब आपने देखना है, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, वो तो ठीक हो गया, बट कौन सा वर्ड डिटरमिन करेगा कि सिंपल पास्ट ही रहे, टेंस चेंज ना हो? सो आपने वॉज डाला यहाँ। अगर ये लेटर की जगह होता लेटर्स, जी अवेस, इफ इट हैड बीन लेटर्स, तो किस तरह हम इसको चेंज करें? मैम letters were written by me. पर वॉज की जगह हम क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई वो जो हमने स्टार्ट में टेंसेस के बबल्स किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगी उस बबल की आप एक पेज पे अच्छी डायग्राम बना के अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ या जहां सुबह आप तैयार होते हो शीशे के साथ लगा लें, सो दैट यू नो कि कौन से बबल के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगे। ठीक हो गया? सो जस्ट रिमेंबर दैट। नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए, समटाइम्स सब्जेक्ट इज रिमूव्ड इफ मीनिंग इज एविडेंट। अगर तो मीनिंग बहुत क्लियर है तो सब्जेक्ट को की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बनानाज आर सोल्ड इन डजन्स। अब इसमें ये पैसिव है। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। Now, important thing is कि there are some sentences that cannot be changed into passive voice. कुछ ऐसे sentences होते हैं जिनको passive voice में convert नहीं किया जा सकता। वो कौन से sentences होते हैं, किस चीज पे depend किया जाता है कि वो नहीं change होते passive में? Let's discuss this. Number 1, सबसे पहले तो कुछ ऐसे tenses होते हैं that cannot be converted into passive. ठीक है, ये as it is जो locals हैं वही उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। सो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा कि कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिनको पैसिव में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और अभी हम जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से। बड़ा ही एक बेसिक टॉपिक, बहुत से लोगों को इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है। हिस्ट्री इसको बड़े डिफरेंट फॉर्म में डिपिक्ट करती है और हमारे पास जो हिस्टोरियन है वो उसको बड़े डिफरेंट फॉर्म में डिपिक्ट करता है। आज हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी जो आप हमेशा से पढ़ते आते हैं, आप पाकिस्तान अफेयर या मुताले पाकिस्तान की कोई भी किताब खोलें या शुरू करें तो उसके अंदर आपको इस किस्म के अल्फाज नजर आते हैं कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, दो अलग कौमें थे। बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर अगर हम देखते हैं तो तारीख के अंदर मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल या जो भी मामला हो, बेसिकली ये टॉपिक मैं पहले बाद में पढ़ाती होती थी। पहले मैं डॉनफॉल पढ़ाती थी क्योंकि कनेक्टिविटी यही आती है कि मुसलमानों को पहले वहां पे जब उनका गोल्डन इरा, फिर उनका डॉनफॉल क्यों हुआ, क्या वजह थी, एंड देन हम आते हैं आइडियोलॉजी की तरफ। लेकिन आइडियोलॉजी एक बड़ा बेसिक और एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आइडियोलॉजी होती क्या है? अब हमारे पास, अब आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे और आपको पता चलेगा कि दो तरह के वर्ड्स होते हैं। कुछ आपके सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं और कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं। आइडियोलॉजी एक बड़ा हार्ड वर्ड, उसके अंदर आपकी जो सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसकी तमाम की तमाम सिमेट्री को फार्मुलेट करते हैं। अब जब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी इज द सेट ऑफ आइडियाज। मैं अभी आपको स्लाइड के ऊपर दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में देखें तो ये वो सेट ऑफ आइडियाज थे, ये वो फोर्स थी कि जो रीजन बनती है आगे चल के टू नेशन थी।
वन बाय वन जरा इन चीजों को देखते हैं। मैं आपके सामने स्लाइड शेयर करती हूँ कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, उसके ऊपर टू नेशन थ्योरी किस तरीके से फार्मुलेट होती है, और अलॉन्ग विद इट हमारा जो हिस्टोरियन है, ऑथेंटिक हिस्टोरियन, वो उसको किस तरीके से लिखता है। अब यहाँ पे हम अपनी बात शुरू करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या होती है, किन चीजों पे बेस करती है, और फिर उसके साथ हम उन चीजों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो टू नेशन थ्योरी की तरफ चीजों को हमारे मामलात को लेके जाती है। बहुत क्लियर कट क्वेश्चन तो वो नहीं करता। अब उसका जो क्योंकि दैट वाज द पर्टिनेंट क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं तो जब आप उस सीएसएस को एक 1900 के इरा में अगर देखते हैं, 2000 के अर्ली फेजेस में देखते हैं, तो वहां पे एक बहुत ही, आप ये समझिए कि एग्जामिनर पाकिस्तान अफेयर का अगर पर्चा बनाने बैठता था तो उसके नजदीक पहला सवाल यही होता। लेकिन यहाँ पे अब हमने इन चीजों को देखना है कि हमारे पेपर के हवाले से अगर नहीं भी तो एक इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना कि व्हाट एक्चुअली इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का वर्ड आइडिया से निकला है। आप लोग अब सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी दिन आपको आइडिया आया होगा कि मुझे ये काम करना है, तो बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ आइडियाज, ऐसी थॉट, ऐसी चीजें कि जिनके ऊपर कोई भी माशरा, कोई भी कौम या कोई भी शख्स अपनी खास तरह की सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती कोई भी मूवमेंट, कोई भी एफर्ट लेके आता है, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो आइडियोलॉजी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियाज, आपके जहन में आने वाली एक ऐसी बातें हैं, एक ऐसे आइडियाज हैं, एक ऐसे ख्यालात हैं कि जिनको पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस दी गई है सिर्फ इसलिए कि वो किसी भी सियासी, माशी, माशरती या समाजी, जो हमारे माशरे के डिफरेंट अस्लूब हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप मुसलमानों की जो एफर्ट थी, दैट वाज प्योरली अ पॉलिटिकल एफर्ट। वो जो आइडिया था उनका कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। जिन्ना साहब बहुत सारी जगहों पर ये देखते हुए भी पाए गए कि हमें मसला साथ रहने में नहीं था, वी वर ओके टू लिव देयर। हमारा वहां पे कि हम इतने कच्चे ईमान वाले नहीं थे कि हमारे दीन को खतरा था। मसला ये था कि हमें वो रखने को नहीं तैयार थे। मसला ये था कि हमें ह्यूमनली ट्रीट नहीं किया जा रहा था। मसला ये था कि हमारे बेसिक राइट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। तो ऐसे केस के अंदर इन्होंने अपनी, बहुत दफा हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट वाज जस्ट लाइक दैट ऑफ इस्लाम। यस, इस्लाम वाज वन ऑफ द, Islam was one of the base for which we were striving, but इस्लाम के अंदर के अलावा जो चीज थी वो वहां की पॉलिटिकल मूवमेंट, ये एक सियासी जंग थी। Single unified entity being a Muslim was the thing that was gluing us on. तो ये वो चीज थी कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन किन किन चीजों पे बेस करती है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनको हमने देखना है और लेके चलना है। लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्वेश्चन तो मुझे बताइए ताकि हम उसको देखें। अच्छा, ये मेरे पास बार बार ये पॉप अप कर रहा था, लोग जो है वो वेटिंग रूम में शायद जा रहे हैं। एक मिनट, इस चीज को जरा आप प्लीज देख लीजिएगा। आई वाज अनअवेयर कि पता नहीं क्यों वो वेटिंग रूम वो पॉप अप कर रहा है, तो दैट वाज लाइक दैट कि वो वेटिंग रूम में जा रहे हैं। एक मिनट, there are a lot of people in waiting room. Okay ji, if you have any question please raise your hand. agar clear hai you can just say clear in the chat. मैम अच्छा, यस मैम, अब हमें प्रिंसिपल्स की बात करनी है कि आइडियोलॉजी फार्मुलेट करने के भी कुछ प्रिंसिपल्स हो। प्लीज ऑलवेज रेज योर हैंड सो आई कैन हैव आइडिया। यू आर सेइंग क्लियर, तो ठीक है। अच्छा, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें तो कौन कौन सी पीछे बेसिक प्रॉब्लम फोर्सेस थी कि जिनकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी फार्मुलेट हुई। चल ठीक है, क्लियर है, तो इट्स गुड। या इन बेसिस पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी या उन तमाम स्ट्रगल्स के पीछे क्या था। तो सबसे पहले इस्लाम। सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंटायर स्ट्रगल हमने तब शुरू की कि व्हेन वी कम अक्रॉस कि हमारी जो एक मुसलमान होने की आइडेंटिटी है, जब आपको आपकी इबादत गाहों में जाने से रोक दिया गया, जब वहां पे आपसे बेसिक राइट छीन लिया गया
कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। तो इंटायर स्ट्रगल ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट, पर सगीर के अंदर रियासत एक नई बनाने की सारी जो स्ट्रगल थी, तो इंटायर स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो रियासत में थी, वो बेसिकली इस चीज के लिए थी कि हमने इस्लाम की एंटिटी और यूनिटी को मेंटेन करना है। हमने वहां पे इस्लाम के लिए ये तमाम की तमाम स्ट्रगल थी, और इस्लाम का दौरा होना चाहिए, और इस्लाम के जो असूल हैं उनको हम लेके चलेंगे। दूसरी चीज थी टू नेशन थ्योरी, और उसमें बड़े क्लियर कट का आज़म ने कहा कि हम सदियों से साथ रह रहे हैं हमारे, लेकिन कल्चर्स और सिविलाइजेशन डिफरेंट है, इसलिए हम एक दूसरे के अंदर अमलगमेट नहीं हो सकते। सर सैयद अहमद खान ने कौम को लफ्ज देकर इनको जगाया कि भाई तुम एक अलग कौम, और फिर अल्टीमेटली अल्लामा इकबाल ने जोग्राफिकली जो पूरा पोर्ट्रेट किया खुतरा इलाहाबाद, वो आपके लिए एक फ्रेमवर्क है कि जिसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि भाई हाँ, आप इस तरीके से आप एक रियासत बनाएं। उसके बाद टेरिटरी, बेशक हमारी आइडियोलॉजी के अंदर हमें एक रियासत की भी जरूरत थी, उस वक्त तक नहीं है कि जब तक हम इन हिंदुओं के साथ हैं, उस वक्त ये होगा कि जब हम अलग कौम की सूरत होंगे। तो ये वो बातें हैं कि जो अल्लामा इकबाल ने की हैं। एक और बात, अब ये सेइंग जरूरी नहीं है कि आप रट लें, आपको कोई और सेइंग्स मिलती हैं इनकी एक दो लाइन के ऊपर, कुछ सिंपल मिलती हैं, कुछ आसान मिलती हैं, गो फॉर इट, आप उसको ले सकते हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ उन्हीं को कोट करना है, जरूरी नहीं है कि आप इनको भी कोट करें, ठीक है। अब कायद आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो जिन्ना साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 18 मार्च 1944 को, बात सवाल ही इसी तरह आता है, इसलिए मैंने स्लाइड भी इसी तरह बनाई है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अंडर द सेइंग ऑफ कायद आज़म एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये जो इनकी सेइंग्स हैं, आप कहीं से एक वन पेजर बना लीजिएगा और उसके ऊपर आप एक या दो सेइंग्स हर एक की लिख लीजिएगा, 2 से 3 कर लीजिएगा, आपको अक्सर इधर उधर जो नजर आती हैं उनको इसके साथ लिंक कर लीजिएगा। कायद आज़म मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान उस दिन ही बन गया जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ। ये उस वक्त हुआ जबकि कोई रूल नहीं था मुस्लिम्स का, और मुसलमानों की जो फाउंडेशन है वो कलमा तौहीद है, रादर देन दैट के रंग नस्ल जात पात। जब हिंदू ने मुसलमान हुआ तो बेसिकली उसने अपने आप को सेपरेट नेशन के तौर पर ही प्रेजेंट किया, और उस दिन एक नई कौम रियासत यहाँ हुई जो कि मुसलमानों की रियासत। बहुत इनकी फेमस सेइंग है कि पाकिस्तान उसी रोज बन गया था कि जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ। ये उसी सेइंग की आगे जो है वो डिटेल, अगर आप सिर्फ इतना भी कह देना कि हिंदू मुसलमान हुआ था तो ये भी इनफ है, ठीक है। इसमें ऐसा सच नहीं है कि आपने अगर इतना नहीं बताया आप कोई मसला हो जाएगा, नो, दैट इज इनफ कि आप अगर कायद आज़म फाइल एड्रेसिंग, जरूरी नहीं है कि आप बताएं कहाँ एड्रेस कर रहे थे। कायद आज़म वाज ऑफ द व्यू दैट पाकिस्तान came into being when the first Hindu converted to Muslim। तो आइडियोलॉजी के अंदर कायद आज़म का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आइडियोलॉजी के फॉर्मेशन में उन्होंने ये बात, हिंदूज एंड मुस्लिम बीइंग द टू मेजर नेशन, जहां पे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर दो बड़ी कौमें हिंदू और मुस्लिम। Hindu and Muslims belong to two different religion, philosophy, social customs and literature। और हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ दीन, मजहब, फिलॉसफी और अपने रोजमर्रा के मामलात, उनकी तालीम और तरबियत में वो अलग है। They neither intermarry nor interdine, ना वो साथ बैठ के खा सकते हैं ना वो एक दूसरे से शादी कर सकते। They belong to two different civilizations। अगर हमारी तहजीबें खरीदो तो एक जो है वो मोहम्मद अरबी के दीन के मानने वाले हैं, और दूसरे जो है उनकी तहजीब कोई और है। हमारे जो आइडियाज हैं वो डिफरेंट है, कंफ्लिक्ट है, हमारी जिंदगी के असलूब मुख्तलिफ है। तो इस बात से क्लियर कट इंडिकेशन मिलती है कि हिंदू और मुस्लिम जो है उनकी तारीखें अलग हैं। जिनकी तारीखें अलग होती हैं उनके हाल और मुस्तकबिल भी अलग। हम दो अलग कौमें हैं, हमारे रहन सहन जब अलग है तो आप हमें एक छत पर बंद नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप देखिए कि कायद की आप आर्गुमेंटेशन देखिए, कायद ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम अलग हैं या हमें जो है वो तकसीम कर दीजिए, कायद ने रीजंस दिए। कायद वाज ऑफ द व्यू कि ये वो बातें हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूं कि हम अलग हैं, और ये बातें हमें आपको बड़ी मान्यूट लग रही होंगी, तो क्या हो गया साथ अगर बैठ के नहीं खा सकते, क्या होगा अगर उनके साथ शादी नहीं। दिस इज द सोशल डायलॉग। सोसाइटी बनती है एसोसिएशंस के ऊपर, एंड एसोसिएशन इज ऑन द फार्मूला ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक और अनलाइक जो है वो वहां पे डिसॉल्व नहीं करते एक दूसरे को, वहां पे फिर कम्युनिटी एसोसिएट ही नहीं होती, और जब एसोसिएशन ही नहीं होती तो फिर कम्युनिटीज ही नहीं बनती। फिर आप जो है वो बैक टू द रॉक जा रहे हैं, रादर देन दैट कि आप हायर लेवल ऑफ स्टेट की तरफ। कायद ये अक्यूबन, कायद ने फिर ये चीज जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, उन्होंने कहा व्हेन रिलेशनशिप नीड्स द मुस्लिम इनटू वन होल,
What is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected? What is the sheet anchor providing base to the Muslim millet? The relationship, the sheet anchor and the rope is Holy Quran. आप लोग 10th क्लास की किताब खोलिएगा कि वो कौन सा रिश्ता है जो मुसलमानों को जोड़े हुए है, वो कौन सी जो है वो कश्ती है कि जिसमें वो मौजूद है, ये वो वाली बात है और इसकी ये इंग्लिश में हुई हुई है, आप उसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या वो कौन सी ताकत है कि जो तमाम लोगों को मिल्लत के जो है वो एक नगीने में परोए हुए है, वो रिश्ता, वो जो है आपकी शील्ड, वो तमाम की तमाम चीजें, पत्थर फकत एक है और वो है होली कुरान यानी कि इस्लाम। क्योंकि अगर एक इस बेसिस पे ना रोकते तो वो फिर वहां का पठान कहता कि मैं क्यों आऊं भाई, मैं क्यों अपनी जान दूं, वहां का बलोची कहता या वहां पे जो इस एरिया के अंदर लोग थे उनकी एथनिक कन्फ्लिक्ट शायद सब कॉन्टिनेंट में बच्चों ऐसे ही थे कि जितने आज आपको नजर आते हैं। वहां पे भी ग्रीवेंसेस शायद ऐसे ही थे कि जैसे आज आपको पानी बिजली पे लड़ते नजर आते, लेकिन कायद को पता था कि इस्लाम इज द पॉइंट कि जिसके ऊपर दे ऑल आर यूनाइटेड एंड दे आर knit टुगेदर, और उसके ऊपर फिर उन्होंने जब आवाज दी तो सब यक जबान हो गए। So this is the conclusion to the whole talk जो आज हम लोगों ने की, which is about the ideology of Pakistan. I never bound the student, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी ना डिस्कशन आपके राइटअप्स की, तो उसके अंदर हम अपना एक ऐसा क्वालिटी सवाल बना लेंगे जो एज अ टेम्पलेट हमारे साथ चलेगा। ठीक हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? वी आर गुड टू गो? यस जी। और कोई आपका सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। टेक योर 5 minutes for the नमाज एंड देन यू हैव योर नेक्स्ट क्लास। जी, आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर। जी ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग यू। विल सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेस। आर यू अ ग्रेजुएट? क्या आप जॉब की तलाश में हैं? अगर हैं तो फिर पाकिस्तान की बेस्ट जॉब हासिल करें बाय डूइंग CSS। Do CSS and join Civil Service of Pakistan and serve the country. Join us to prepare for CSS exam with our CSS qualified officers with 50% special discount. Call us for admission and more information. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you people are fine. चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी towards our lecture number 3. We are going to start importance of दीन in human life, कि इंसानी ज़िंदगी में दीन की क्या अहमियत होती है, कि इंसानी ज़िंदगी में अब दीन की क्या अहमियत है। इसका मैंने बताया था 2-3 तरह से वो सवाल पूछ सकता है। पहली चीज़ कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इस तरह पूछ सकता है। इस पे जो ना वो आपको बोले कमेंट करो। दूसरी बात, ही कैन आस्क यू के व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लाम इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है जी। तो इस तरह से वो पूछ सकता है, या जिस तरह 2016 में उसने पूछा कि वो इसको किसी दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करके किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिला के पूछ सकता है। जैसे 2016 में उसने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, एक हिस्सा वो पूछ लिया तो ना 10 नंबर का वो हो गया और 10 नंबर का इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ हो गया। अच्छा जी, अब हमने बात की थी कि इस पे लास्ट टाइम बात हुई थी कि जी इस्लाम इट्स नॉट जस्ट ए रिलीजन। अब बात यहीं से जो है शुरू करेंगे। मैंने लास्ट टाइम पैराग्राफ भी आपको लिखना सिखाया था, ठीक है जी। दीन चलिए इस्लाम से शुरू कर लें। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ दीन, एंड इन दीन देयर इज फुल गाइडेंस इन ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ। दीन गाइड्स मैनकाइंड from individual matters to collective matters. In Deen, there is guideline present to deal with the spiritual as well as the secular matters of life. Thus, Deen is very important in human life. In a man needs Deen to have the light of guidance, to know what is right and to distinguish right from wrong in his individual affairs of life as well as in his social affairs of life. And Islam is a deen. As Islam is not a religion but a deen, so we can say that Islam is a complete code of life. It is the code in which lies the salvation of man.
सैल्वेशन का मतलब होता है जी इंसान की फलाह। कहते हैं ना वो जो ना अजान में वर्ड आते हैं जी, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। तो सैल्वेशन मतलब है जो ना फलाह का। तो बात हो रही है कि जिसने इस कंप्लीट कोड को फॉलो किया तो वो फलाह पा गया। ठीक है जी। रेफरेंस फिर किस तरह है जी, सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 2 है, ज़ालिका ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका ये, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रैब फीही जिसमें कोई शक व शुबा, हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए रहनुमाई है। ठीक है जी। यहां तक आप इतना भी लिख सकते हैं। तो अब देखें अब आप इसको कोड कैसे करेंगे। God has sent his book in truth and his book is a guiding light for mankind in all affairs of life to follow, like in Surah Baqarah verse number 2 अल्लाह ताला से अगर ये रेफरेंस नहीं भी याद तो आप इस तरह रेफरेंस लिख दें, like God has ordained और God has ordered और God has said in Quran। फिर रेफरेंस लिखें ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, फिर ट्रांसलेशन लिखें, फिर अगर ये हवाला याद है तो ये लिख दें। ठीक है जी। फिर ये देखें आपके पैराग्राफ में क्या क्या चीजें आ गई। 2 इंग्रेडिएंट्स हमने पहले बात की थी वो आ गए। अब इसके जो ना कंक्लूडिंग लाइन बस लिख दें, दस दीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, अ मैन कैन नॉट फुलफिल द पर्पस ऑफ लाइफ विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ दीन। ठीक है जी। फिर आगे बात करें जी प्रोविजन ऑफ दीन की, कि दीन की क्या क्या प्रोविजन है, दीन क्या क्या किन किन मामलात में हमें गाइडलाइन देता है। ठीक है जी। ये फिर इब्ने खल्दून का भी मैंने आपको लिखवाया था, इब्ने खल्दून दीन की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बात करते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे, दीन गिव्स अ क्लियर मैसेज टू मैनकाइंड। उर्दू वाले इसकी जो ट्रांसलेशन लिख लें, दीन बनी नू इंसानियत को एक खुला पैगाम देता है या सही पैगाम देता है या दुरुस्त पैगाम बनी नू इंसानियत तक पहुंचाता है। ठीक है जी। अब वो क्लियर मैसेज क्या है, दीन टेल्स मैन, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा। दीन गिव्स अ क्लियर मैसेज टू मैनकाइंड, प्लीज एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। somebody had sent a very good paragraph into the chat box। ठीक है जी। do not type it, just explain what you think of this particular sentence or this particular heading। ठीक है जी। इस तरह एक्सप्लेन करना सीखें, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। अपने जो ज़हन में ना जाहिर है इस पे हर किसी का कोई ना कोई आइडिया आ रहा होगा। जब आइडिया आ रहा होगा तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू पुट दैट इनटू द वर्ड्स। ठीक है जी। जिसको अपने ख्यालात जो हैं वो जो है ना अल्फाज में ढालने आ गए, he has cleared this exam। yes उर्वा, do explain whatever you think, जो आपको समझ आती है in English। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुलेट पॉइंट्स ऐड कर लूं, लाइक अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे माइंड में जिस तरह वो जी, बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है वो बुलेट पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट से रेलेवेंट है, इफ जी यू सर। हैव एनीथिंग एल्स देन बुलेट पॉइंट्स डू एक्सप्लेन इट। अगर आप बुलेट पॉइंट्स को लेके जो एक्सप्लेन करना चाहती हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। श्योर सर। सर दीन जो है वो क्लियर मैसेज ऐसे देता है हम लोगों को, लाइक इन अ सेंस दैट इट गिव्स अस अ वेल ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ लाइफ एज वेल एज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक ये पॉइंट, इफ दिस क्वेश्चन कम्स देन आई विल पुट दिस वन पॉइंट ओवर देयर, देन आई विल बी पुटिंग अबाउट क्लियर मैसेज इन सेंस के not only talking about messages of life, messages of different particular aspects of life, but also talking about the knowledge, insightful things that are not found in every book or that are not found in every single person। इंसाइटफुल थिंग्स दीन इस्लाम जो है वो भी प्रोवाइड करता है बहुत क्लियरली। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लोगों की मेडिसिन के बारे में बात हो वो भी प्रोवाइड करता है, और अगर कोई हम लोगों की स्पिरिचुअल उस पे बात हो तो वो तब भी दीन इस्लाम प्रोवाइड करता है। सो ये 2 हेडिंग्स आई वुड ऐड। जी जी, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सही है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा वालेकुम अस्सलाम सर। आज मुझे लेट मी कंप्लीट माय लेक्चर। सबसे पहले
हम लोग आखिरी 15 से 20 मिनट, चाहे मुझे एक्स्ट्रा भी लेने पड़ेंगे, कोई इशू नहीं है, हम आखिरी के 15 से 20 मिनट अलग से सवालों को रखेंगे, क्योंकि बीच में पेज टूट रही है। फिर काफी स्टूडेंट्स ने एकेडमी में कंप्लेन भी की थी कि यार बीच बीच में सवाल आते हैं, इंटरप्शंस होती हैं। चाहिए क्योंकि बच्चे आप लोग ज्यादा हैं क्लास में, तो मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर जितने भी सवाल हैं आई विल बी आंसरिंग दोस। सही है। कल हमने यूनाइटेड नेशंस किया था, आज विल बी स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द ईयर 1944, उसके बाद बना था, जिसके अंदर डिसाइड हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे। अब ऐसी कोई चीज फ्यूचर में ना हो, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, उस चीज को कर्टेल करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, एंड इसके टोटल मेंबर्स एज ऑफ नाउ आर 189। इसके जो मेजर फंक्शंस हैं, सबसे बड़ा इसका मेजर फंक्शन है इंटरनेशनल जो हमारी एक्सचेंज रेट्स हैं, जो इंटरनेशनल करेंसी है, उसको मेंटेन करना ताकि उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, एंड उसको स्टेबलाइज रखना ताकि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी म्यूचुअल ट्रेड है लोग कंट्रीज की आपस में, वो हैम्पर ना हो सके उस वजह से। उसी से रिलेटेड 3 से 4 और फंक्शंस हैं इसके। अमंग देम आर सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि यार पूरी दुनिया में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहे, क्योंकि करेंसी रेट आपके सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो उससे लोगों की जो ट्रांजैक्शंस होगी कंट्रीज की आपस में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा होगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को, इसके थ्रू फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। फैसिलिटेट किस तरह करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब आपकी इंटरनेशनल करेंसीज जो है उनको जब ये रेगुलेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइनेंस, उससे आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रेगुलेट हो जाएगी, फैसिलिटेट हो जाएगी, ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ज्यादा उसकी ट्रांजेक्शंस हैं दैट वुड बी मोर, कह लें स्टेबल कह लें, राइट। इसी के साथ साथ जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस बढ़ेंगी, जब आपकी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की। उससे क्या होगा कि जो लोकल वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी के लिए डिमांड क्या, उनको पूरा करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएगी अपना, ज्यादा लोग को नौकरियां मिलेंगी ताकि ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, ज्यादा हम लोग फिर आगे एक्सपोर्ट कर सकें। सही है। अच्छा, इसके बाद इसका जो एक और मेजर फंक्शन है, सब ये सब वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शंस है इसका, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो कंट्रीज की, जो कंट्रीज के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करना। कंट्रीज अगर अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अपनी जो प्रॉपर, उनके इतने पैसे नहीं है कि अपने एक्सपोर्ट्स को फंड कर सके, या कुछ सर्टेन अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं, उनकी जो बैलेंसिंग के जो चेक्स हैं, उनकी जो रिसीट्स हैं गवर्नमेंट्स की, जब वो फुलफिल नहीं हो रही, उन चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए भी IMF लोन्स दे रहा होता है। इसके साथ साथ ये इंश्योर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली लिंक्ड है आपस में, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर हो रहा होती है, एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होती है पूरी दुनिया के अंदर। सही है। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बनी थी IMF, ताकि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा रीजन था कि जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसकी वजह से आया हुआ था, राइट। अब ऐसा कोई क्राइसिस फ्यूचर में ना आए, एंड उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए IMF बनाया गया था, जिसके अब 189 मेंबर्स हैं और ये सारे फंक्शंस हैं उसके। अच्छा, IMF का चार्टर क्या है? चार्टर वैसे तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट उसकी अगर समरी देखी जाए तो उसकी जो जिस्ट है दैट इज कि जो लोन्स है वो स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक क्राइटेरिया को फिलफिल करने के लिए दिए जाएंगे। जो इकोनॉमिक नीड्स हैं किसी कंट्री के, जो इकोनॉमिक समझ लें कि जो इश्यूज आ रहे हैं किसी कंट्री को, अगर अपने फुलफिल करते हुए उन चीजों को ओवरकम करने के लिए IMF लोन्स देगी। इसके अलावा बाकी लोन्स IMF नहीं देता। इसके बाद इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी आपकी को स्टेबलाइज रखेगा, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात की थी। जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे, उनको स्टेबलाइज करता है IMF। एंड इसका सेकेंडरी फंक्शन है जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए एज ए लास्ट रिजॉर्ट होता है IMF, कि अगर वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आउट हो गई है, अगर उनके पास समझ लें कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल देने के पैसे नहीं है, या इसके अलावा कोई और अगर इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है जो कि कंट्री फील्स अगर हमने IMF के पास नहीं गए तो कंट्री वुड कोलैप्स, तो उन केसेस के अंदर भी IMF आपको लोन दे रहा होता है प्योरली ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शंस जो पिछली 2 बार रिपीट कर चुका हूं, एक और बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला फंक्शन है इसका जो इसने पैग किया हुआ है एक्सचेंज रेट्स को। पैग का मतलब कि इसने जो एक्सचेंज रेट्स है उनको स्टेबलाइज किया हुआ है अगेंस्ट द गोल्ड, कि ऐसा ना हो कि कोई कंट्री ओवर प्रिंटिंग कर दे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हिट कर जाए पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर।
तो उन सब चीजों को गोल्ड के साथ लॉक किया होगा, जितना गोल्ड उतना ही आप सर्टेन एक रेशो के हिसाब से यू विल बी प्रिंटिंग द मनी, राइट। इसके साथ साथ ये प्रमोट करते हैं स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट्स की और फाइनेंशियल फ्लोज जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं आपके, जो एक्सचेंज ऑफ मनी है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उन चीजों को स्टेबलाइज भी आईएमएफ कर रहा होता है। आईएमएफ ना अपना जितना भी सिस्टम है, जितनी भी अपनी वो सारे फाइनेंसेस हैं, वो मल्टीलैटरल पेमेंट सिस्टम्स के थ्रू मैनेज कर रहा होता है। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि जितनी भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, टोटल 189 जो है, वो अपनी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से ना सर्टेन कंट्रीब्यूशन डाल रही होती है, सर्टेन पैसा डाल रही होती हैं। कि सपोज अमेरिका की इकोनॉमी सबसे अगर बड़ी है, सबसे ज्यादा पैसे वो पुल इन कर रहे हैं, उसके बाद अगर चाइना है तो चाइना उससे थोड़े कम पुल इन कर रहा है। तो हर कंट्री अपनी इकोनॉमी के हिसाब से पैसे इसके अंदर पुल इन कर रहा होता है, कर रही होती है, राइट। अब वो सारे के सारे जब पैसे एक जगह पे मिलते हैं, एंड आईएमएफ उसी पैसे को यूटिलाइज करता है, डिफरेंट कंट्रीज को जिनको जरूरत होती है लोन्स की, उनको फिर लोन्स प्रोवाइड कर रहा होता है। सही है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड बैंक का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि लिबरलाइज करना, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना, कि जो कंट्रीज हैं आपस में टैरिफ्स ना लगा रही हो, ट्रेड फ्री हो रही हो, ताकि हर कंट्री डेवलप हो सके, उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज कम से कम हो जाए, एम्बार्गोस को डिस्करेज करना इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, अब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स ना आपको मोर और लेस काफी लोगों को कंफ्यूज करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी काफी टाइम पहले तक कंफ्यूज कर रहे थे, बट इनके बीच में एक थिन लाइन डिफरेंस है। हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, राइट। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक ही समझ लें कि एक ही साइकिल के दो पहियों की तरह चल रहे होते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में एंड उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने में, एंड वहीं पे आईएमएफ स्टेबलाइज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, जो करेंसी रेट्स हैं उनको, एंड वर्ल्ड करेंसी का एज अ मॉनिटर एक अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। ये दोनों ही जब साथ चलते हैं तब भी इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो इंप्रूव करती है, वो ग्रोथ रेट की तरफ जाती है। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंसेस, एडवाइसेस देता है पॉलिसी ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा होता है गवर्नमेंट्स को, ये ताकि वो अपनी जो प्राइवेट सेक्टर है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, वो अपना जो सेक्टर है उसको इंप्रूव कर सकें, उसको थोड़ा ये बेहतर बना सकें। उसी के साथ साथ जो आईएमएफ है वो लोन देता है इकोनॉमी के बेस के ऊपर, कि कंट्रीज अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मीट कर सकें, कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को मीट कर सके, कंट्री ऐसा ना हो कि वो किसी और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ना। स्लाइड्स दे चुका हूं, बाकी डिटेल नोट्स भी एकेडमी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर जो जो होता जाएगा उसके साथ साथ, तो डोंट वरी, वो मिल जाएंगे आपको बहुत जल्द। सबसे पहले सवाल जो मेरे पास हैंड रेज किया हुआ है मोहम्मद जमील साहब ने, जी पूछें, और जो सवाल पूछें जैसे पूछ, एक सेकंड, जैसे ही आप पूछ लेते हैं ना, काइंडली फिर अपना हैंड नीचे कर दीजिएगा, सही है। चलें ठीक है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने राइट भी किया हुआ था, मैंने कहा ये कंट्रीज को पहले ही आइडिया हो जाता है कि उनका नेट डेफिसिट हो रहा है या उनके पास पैसे नहीं है, तो वो पहले ही क्यों नहीं अपने के या टैक्स लगा देते हैं, या अपने जो उनके इंस्टीट्यूट होते हैं उनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते, और इंस्टेड के वो आईएमएफ के पास जाते हैं और उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेते हैं। सर देखिए, चीजें ना कहना बहुत आसान है, क्योंकि मैं खुद आईआरएस से हूं, तो टैक्सेस थोड़े बहुत क्योंकि ट्रेनिंग चल रही, थोड़े बहुत मैं भी समझता हूं। कहना बहुत आसान है, टैक्सेस को इंप्लीमेंट करवाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड उसके साथ साथ हमें फॉरेन रिजर्व्स भी चाहिए होते हैं ना। हम टैक्सेस तो लोकल करेंसी में कर रहे होते हैं, अब हम फॉरेन करेंसी हमने कहाँ से उस चीज से लेनी है, तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए नॉर्मली हम लोग आईएमएफ के पास जा रहे होते हैं। एंड सेकेंडली, जितना पैसा हम आईएमएफ से चाहिए होता है ना उस टाइम, उतना पैसा नॉर्मली कंट्री के पास होता नहीं है एट दैट सर्टेन पॉइंट, या उस टाइम इन द शॉर्ट रन कैपेसिटी नहीं होती कितना पैसा एक साथ जनरेट कर सके। सही है जी। मैमुना मैडम आपका नहीं, उर्वा मैडम आपका हैंड रेज है, बोले। यस सर, मैंने आपसे एक तो ये क्वेश्चन करना था कि आपने ये बात की कि कश्मीर के इशू पे हम ऐसा बेंच बना कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब इंडिया के साथ ये हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन वो हमसे कश्मीर के इशू पे बात करना नहीं चाहते। एक तो ये है, और सेकंड ये मेरा क्वेश्चन था कि जो हम लोगों ने अभी, आपने कहा है कि मैंने स्लाइड्स और नोट्स सेंड करने हैं एकेडमी को, तो हम जो प्रेपरेशन है वो जो आपकी अभी की जो स्लाइड्स हैं उसी से करेंगे, या फिर जो आपके नोट्स हैं उससे प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करें?
अच्छा मैडम, सबसे पहले आपका सवाल जो पाकिस्तान और कश्मीर वाला रिलेटेड था ना, मैंने कश्मीर में आपको ये बात कही थी कि पाकिस्तान एससीओ के थ्रू डिप्लोमेटिकली पुश कर सकता है, एक पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकता है इंडिया के ऊपर, ताकि एटलीस्ट आगे बात करें। सही है, जब बात होगी तो उसके बाद वील सी की चीजें किस डायरेक्शन में मूव करती हैं। रही बात मेरे नोट्स रिलेटेड, तो जो मैं आपको स्लाइड्स इसीलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो सके क्लास में जो चीज मैं कह रहा होता हूँ ना, आप रिलेट कर सके उसके साथ। इसकी जो डिटेल्स है ना, एग्जैक्ट डिटेल्स, इसको अगर डिटेल में जो लिखा गया है वो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो वो डिटेल्स आपको इसके नोट्स के अंदर मिलेगी। जो मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ वो आपको नोट्स के अंदर मिलेगी। बट अगर आप चाहें तो सिर्फ नोट्स को रेफर करें, चाहें तो सिर्फ स्लाइड्स को रेफर करें, वट एवर सूट्स यू। सही है। अच्छा, अब शाजिया मैडम आपका सवाल था। जी सर मैं ये बताना चाह रही थी कि जो एससीओ है वो ओरिजिनेटेड है S5 से। तो आपने कहा कि ये जो रीजनल कॉरपोरेशन है फाउंड की गई थी 2001 में। तो अगर जो इसकी फाउंडेशन की डेट है वो हम S5 से लेंगे, यानी कि पहले जो इसका नेम था 1996 में, या फिर जब इसको इसमें उज़्बेकिस्तान ने भी ज्वाइन किया तो इसको S5 से SCO में चेंज कर दिया गया था। मैडम अब इसको ना S5 कहा नहीं जाता, अब इसको हर जगह ना एससीओ के पॉइंट से रेफर किया जाता है। पेपर में जब आपसे SCO पूछेगा ही ना, है, लेकिन इसकी डेट जो है अगर MCQs में भी आ जाती है तो हम कौन सी लगाएंगे, अगर वो 2001 वाली या अगर 1996? अगर वो एससीओ का पूछता है तो 2001 ही लिखेंगे। सही है। अब सवाल है सगरा मैडम का, जी पूछें। जी सर, एक बात हमने इस पे की थी कि हमारे पास रीजनल कोऑपरेशन होती है इंक्रीज। तो जिस तरह अभी हम पिछले 3-4 सालों में देख रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और बाकी कुछ कंट्रीज की मिलिट्रीज मिलके जैसे कुछ पाकिस्तान डे परेड्स होती हैं और उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं इकट्ठी। सर ये इन्हीं कोऑपरेशन के अंडर होती है ये स्ट्रगल्स, देखें या ये हाँ, वो पाकिस्तान at का अपना times, इनिशिएटिव होता है? देखें जब पाकिस्तान जो अलग से कर रहा होता है ना, जिस तरह हम 14 अगस्त पे कर रहे होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान डे परेड है, तो पाकिस्तान खुद ही कर रहा होता है। बट कुछ सर्टेन जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो एट टाइम्स कॉर्पोरेशंस मिलकर कर रही होती हैं, एट टाइम्स 2 से 3 कंट्रीज मिलकर वैसे ही कर रही होती हैं, अपना ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, या अपने जो वो है ना इनका जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशन है, उसको बताने के लिए भी